So, good evening, everybody. Myself Ashish Suryavanshi, Director of Divine Touch Healing Academy, and we are running an initiative, Mission Har Ghar Healer, and through which we are conducting manual therapy workshops and courses since last 3 years. So far, we have trained more than 400 plus students, and many of them are performing very well. And we keep on increasing our knowledge and our students too through repetitive workshop or advanced workshops also. And you are fortunate that you are getting all our modalities till date within a single workshop. So such kind of workshop we have designed for this batch. Okay, so we'll take a brief of that workshop shortly. So today we have an expert with us, Mr. Neeraj Shah. So he will be your leading trainer, and sir has a expertise of various international therapies also. So you are fortunate that sir has given his time today for the live discussion on your queries. So today's our motto is for the interactive session. Whatever queries you have in case of manual therapy, international therapies, and the learning of them, so you can ask directly to the sir. You can discuss with sir. Okay, and we have conducted several webinars previously for such sessions. So you might have gone through on our YouTube channel. So today we will cover it in a very short. But before that, let us interact. We must know what kind of mob we are having today. Okay, so it will be a more interactive session today. So more you interact, more you get, more we'll get inspired to give much more to you. Okay, thank you. Good evening, yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Yes, sir. Yes. So participants are connecting. So we'll give few minutes more. So within that period, we'll start with the introduction. Yes. Yes, sir. First of all, sir, give your introduction to the room. Yeah. What your expertise, your experience. Good evening, everyone. A very healing good evening to everyone. I am healer Neeraj Shah. I am a naturopath and I am certified ISTM practitioner. I am certified myofascial decompression practitioner. I am certified kids fitness trainer, gross motor skill, fine motor skills. I am certified personal trainer. I am certified visceral manipulation practitioner. I am practicing from 4 years. Yes. So one by one, we can just introduce ourselves. Everyone. You can unmute or put in a chat where you are from, what you are practicing. You can put in a chat. So meanwhile, message are coming, sir. So meanwhile, we will know about what we are exactly going to learn through our workshop and how we conduct the whole 1 year diploma within a span of 2 to 3 months. Okay, so briefly we'll. Yeah. It's a hybrid module where we cover all our theoretical part in a online platform where you will be getting all pre-recorded videos for anatomy, physiology, and techniques video. So you need to go through it, and then we'll meeting in Nasik for 3 days hands-on workshop where we'll be practicing all the techniques hands-on. Yes. So onwards we'll conduct in a Hindi. Yes. Okay.
allow participants to unmute themselves. Okay. So you can unmute. So someone of you, please share what's the motto behind joining this webinar, or you are thinking to get into a manual therapy. सो आपका क्या मोटिव है कि आपने समय निकाला वेबिनार अटेंड करने के लिए, मैनुअल थेरेपी या हीलिंग के प्रोफेशन में आप आना चाहते हो, तो ये कोई ब्रीफ करेगा? If there is a no interaction from your side, there is no point of conducting such kind of events. We are compromising our time, our uh, business, everything. So there must be an interactive session. So we have Abhishek sir, Hassan sir, Puran sir, Mohammed sir, Prashant Yadav. Okay, Prashant sir has already registered for a webinar training session. Rahul sir, Srinath, Sushant, Upen, Malik, Biraj Sharma, and many more. So put it in the chat. Okay. Also mention your educational background. Okay. Okay. So motive is to make a career in a healthcare. Okay. Prashant sir is saying I want to enhance my skill. So he is already practicing. He wants to enhance his skill. और बहुत बार क्या होता है कि हम थेरेपी तो दे रहे हैं, मोडालिटीज हमारे पास है, बट रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट जो है रिकरिंग बेसिस पे वो कंप्लेंट्स आपके पास लेके आ रहा है। तो ये चीजें भी हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या एग्जैक्टली रूट कॉज है वो आइडेंटिफाई करना, और उसके ऊपर ही एग्जैक्टली काम होना जरूरी है। जहाँ पे नेसेसरी नहीं है या वहाँ पे अनवांटेड थर्स्ट हमें देना नहीं है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है। ओके, सो सर आप हिंदी में ब्रीफ कीजिए कि क्या है एग्जैक्टली, क्या मिथ्स है, फैक्ट्स क्या है मैनुअल थेरेपी में, या फिर लोगों को लगता है कि हम कायरोप्रैक्टिक सीख रहे हैं, तो क्या एग्जैक्टली कायरोप्रैक्टिक है, कितना वो डीप है, और हम जो ट्रेडिशनल हीलिंग लेके आए हैं जिसमें हम नॉन मेडिकल्स को भी यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, क्या लिमिटेशंस या रेड फ्लैग्स उनके लिए रहेंगे, तो ये थोड़ा आप ब्रीफ कर देंगे विद इन 5 मिनट्स तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले जो कायरोप्रैक्टिक या ट्रेडिशनल इंडियन बोन सेटिंग जो बोलते हैं, तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कायरोप्रैक्टिक या ट्रेडिशनल बोन सेटिंग जो है, ये थ्रस्ट या सिर्फ आवाज हड्डी चटकाना या आवाज निकालना नहीं है। कि अगर आवाज आया मतलब बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन हुआ, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कायरोप्रैक्टिक मतलब सेफ, इसमें सेफ वे में हम जो मिसअलाइनमेंट स्पाइन में मिसअलाइनमेंट्स है उसको मैनिपुलेट करके या मोबिलाइज करके उसको करेक्शन करेंगे, जिससे कि बॉडी की हम सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट करेंगे, और वहां से हम छोड़ देंगे कि बॉडी जो है वो खुद सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर देगी। तो इसमें हमारा मेन मोटो जो रहेगा वो आ, आवाज निकालना या जो थ्रस्ट जो आजकल यूट्यूब इंस्टा पे चल रहा है, सब कुछ जो वीडियोस आते हैं, वो हमारा मोटो नहीं है। आवाज हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो जो है पेशेंट की जो तकलीफ है उसको कम करना। आवाज निकालने का काम तो हम अगर किसी नाई के दुकान में भी जाते हैं ना, तो वो भी हमारा शेविंग वगैरह करने के बाद वो थोड़ा सा हमारे गर्दन को ऐसे ऐसे करके, हाथ को ऐसे ऐसे, तो वो भी कर सकता है, आवाज आता है। लेकिन वो सेफ वे है क्या? हमको आर्टिकुलेशन प्रोसेस पता है क्या? तो जब तक हमको वो नहीं पता तो हम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम 3 दिन में वही हमारा जो मेन फोकस रहेगा, 2 दिन में वो यही रहेगा कि सेफ वे में हम मैनिपुलेशन कैसे करेंगे जिससे कि पेशेंट को आराम भी मिले और उसको हम रूट कॉज से ट्रीट कर पाए।
तो यहाँ पे सबसे मेन जो है रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन। ट्रीटमेंट करना तो बहुत आसान पार्ट है, लेकिन असेसमेंट डायग्नोसिस जो है वो मुश्किल है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है और क्यों हो रहा है। अगर पेशेंट आ रहा है बैक पेन लेके, तो उसको बैक पेन क्यों हो रहा है, उसको मैनिपुलेशन लंबर रोल करना तो आसान है, लेकिन वो बैक पेन क्यों हो रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो है फुल पोस्चर एनालिसिस और फीट आर फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी। तो उसके फीट में इम्बैलेंस है, उसके आर लो आर्च है, हाई आर्च है, फ्लैट फीट है, इस वजह से उसको ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये सब एजुकेट करके आइडेंटिफाई करके हमको पेशेंट को एजुकेट करना है, और यही सब हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ आपको फैंसी, हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि हम 200 टेक्निक सिखाएंगे, 150 टेक्निक सिखाएंगे। स्पाइन एक है, जॉइंट एक है, तो उस हिसाब से जो पेशेंट सेफ टेक्निक जो है हम वही टेक्निक आपको सिखाएंगे जो हम खुद पेशेंट पे परफॉर्म करते आ रहे हैं और जिसके हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हम आपको वही टेक्निक सिखाएंगे। आपको एक ही इसके हम आपको बता दें कि हम आपको 100 टेक्निक सिखाएंगे, 200 टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन वो टेक्निक सीख के करेंगे क्या जब पेशेंट हम हमारे ट्रीटमेंट टेबल पे लेटेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि शुरू कहाँ से करना है। उसको लंबर रोल ऐसे देना है, खड़े रह के देना है, नीचे कर रह के देना है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम जो आपको टेक्निक सारे सिखाएंगे वो सेफ टेक्निक रहेंगे कि जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और पेशेंट को भी जल्द से जल्द जितना हो सके उतना उसका पेन जो है हम उसको वो मिनिमाइज कर सके, और उसको रूट कॉज से हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। यस सर। Yes, sir. Just a minute. Chiropractic is not about thrust and noise. It's about technique एंड लॉजिक। हमको इलॉजिकल कोई भी चीज नहीं करनी है। हम देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे और बहुत जगह पे ट्रेनिंग भी होती है। वहां पे पेशेंट आता है, उसको हाथ पैर, कान नाक गर्दन कमर घुटने, पैरों की उंगलियां हाथों की उंगलियां, सब कुछ चटका देते हैं। लेकिन सच में जरूरी है क्या? या बस पेशेंट आया सिर से लेके पैर तक उसको हम चटकाएंगे और हो गया? ऐसा नहीं है। हमको स्पेसिफिक काम करना है, हमको डोंकी वर्क नहीं करना है, हमको प्रिसाइज काम करना है। अगर उसको लंबर का प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करके इनडायरेक्ट टेक्निक इस्तेमाल करके हम उसको कितना आराम दे सकते हैं, उस पे फोकस हमारा होना चाहिए। जैसे कि सर्वाइकल का पेशेंट है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, सर्वाइकल पेन है, तो हम सर्वाइकल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम उसका एंकल को एंकल पे काम करेंगे, लोअर बॉडी पे फीट पे काम करेंगे, और उसका सर्वाइकल का रेंज ऑफ मोशन खुल जाएगा, उसका पेन कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी इज वन यूनिट। तो हम सेफ और इनडायरेक्ट टेक्निक जितना हो सकते हैं उस पे हम फोकस करेंगे। यस सर। Yes. So it will be a like total 2.5 month program. तो जिसमें डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग हम अगर बोलते हैं, तो ये बीएसएस का एक 1 year ड्यूरेशन कोर्स है, जिसके सब टीचिंग आवर्स जो है इन कोलैबोरेशन विथ नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, तो एक पैरामेडिकल साइंस के कोलैबोरेशन में हम इसे 2.5 months में कवर कर रहे हैं। तो इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे जो वर्कशॉप के पहले आपको दिए जाएंगे। सिमिलरली हमारा एवरी थर्सडे स्टूडेंट के साथ ओरिएंटेशन एंड लेक्चर रहता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेंट कर पाएंगे। और दूसरा जो है 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो रहेगा, उसमें फर्स्ट 2 days जो है वो डेडिकेटेड टू द डिप्लोमा ऑफ ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। विद इन दैट सिर्फ हड्डी चटकाना नहीं है हमें, तो आप अगर अलाइनमेंट करते हो बॉडी का, तो उसके साथ मसल पे काम करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 70% वर्क तो मसल पे ही करना ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट टू कीप दैट अलाइनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड।
नहीं तो जनरली क्या होता है, हम अलाइनमेंट तो कर देते हैं बट अगेन मसल में जो ट्विस्ट रहता है, दैट अगेन पुल द स्पाइन इन द सेम पोजीशन, और कुछ दिन बाद पेशेंट वापस वही तकलीफ आपके पास लेके आता है। दूसरा, जैसे सर ने बोला कि बहुत जगह पे क्या होता है, बोन सिटिंग सीख के आए हैं, बड़े बड़े जर्क देते हैं पेशेंट को और बॉडी को ट्रॉमा में डाल देते हैं। तो सीधा पेशेंट आया तो नीचे से चालू करेंगे, सीधा उंगली से चालू करके सर्वाइकल तक वो लेके जाएंगे, और पूरे बॉडी में जहाँ पे तुक्का लग गया पेशेंट को ठीक लग गया। तो ये चीजें करना नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ह्यूमन बॉडी है, हमें प्ले नहीं करना है उसके साथ। ओके, तो ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे मोबिलाइज करना है, फर्स्ट कहाँ पे देना है, कितना देना है या नहीं देना है, कौन से केस में, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीडिंग पे भी जो है, वो रीडिंग बोलेंगे या फिर अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। तो आपके पास कौन सा पेशेंट आता है, वो आपका पेशेंट, पेशेंट कहने से अच्छा है कि वो आपके, आपका कस्टमर हम बोल देंगे कि है कि नहीं, उसे थेरेपी देना है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। वी आर थेरेपिस्ट, वी डोंट वांट टू प्रिटेंड लाइक वी आर अ डॉक्टर। ओके, सो कुछ चीजें आप, कुछ केसेस आपको डॉक्टर के लिए भी छोड़ देनी है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं, सो वी आर हियर टू प्रिवेंट, रिमेंबर दैट, नॉट क्योर। सो प्रिवेंट भी कहेंगे तो भी आप एटलीस्ट जितना भी मॉब है जो किसी पेन से जूझ रहा है, उसमें से 70% मॉब तो आपका है ही ना, तो वो आप कवर कर सकते हैं। और इसमें कुछ मेडिकोज है जो वर्कशॉप के लिए आते हैं, उनके लिए वो रेड फ्लैग्स ओपन हो जाते हैं, दे कैन टेक 90 ऑफ आउट ऑफ 100 पेशेंट्स। तो ये चीज़ें भी इसमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फीस पूछ रहे हैं सर। सर फीस के ऊपर तो आएंगे, पहले कंसेप्ट पे बात तो करेंगे। ओके, और जो भी आपके क्वेरीज है चैट में आपको भेज के रखना है, जैसे भी होगा। सो आप में से ऐसे कौन है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओके, ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके प्रोफेशन के बारे में तो थोड़ा डालिए, तब पता चलेगा ना कि कौन से वे में जो है सेशन कंडक्ट करना है। मैं तो मेरा कैसेट बजाते जाऊंगा, उसका क्या फायदा है, वो तो 100 बार मैंने बजा के वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे डाल दिया है, यू कैन हियर दैट। मोहम्मद सर इज बीपीटी। ओके सर। अभिषेक सर, मैं योगा सिखाता हूँ, मैनुअल थेरेपी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या ये कोर्स विदाउट बायोलॉजी वाले कर सकते हैं, एज लिमिट है क्या, कितनी फीस है? यस सर, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज 10th। सिर्फ इसमें क्या आता है, होता है कि आपको अगर बायोलॉजी का बैकग्राउंड है या फिर साइंस बैकग्राउंड है या फिर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ केयर सर्टिफिकेशन आपने लिया है, तो उसमें आपको रेड फ्लैग्स ओपन हो जाते हैं बहुत सारे, कि जो चीज़ें बाकी लोग नहीं कर सकते यू कैन डू। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसेप्ट, एक बार आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया व्हाट यू हैव टू परफॉर्म, और उसके बाद हमारा एक सिस्टम है जो यूनिक है, जो कहाँ कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ मेंटोर। यहाँ पे हमारे पास मेंटोर सिस्टम है, जिसमें जो है ईच एंड एवरी ग्रुप विल असाइन द डेडिकेटेड मेंटोर। जब आप आपके सेंटर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको जो भी क्वेरीज आएगी यू कैन आस्क टू योर मेंटोर। और वीडियोस भी आप भेज सकते हो, कुछ रिपोर्ट्स आपके पास आए, इफ़ यू वांट टू एनालाइज दोज रिपोर्ट्स, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये पेशेंट करना है कि नहीं करना है, देन एट दैट टाइम व्हाट यू मस्ट डू इनिशियली, और उसके बाद आप मेंटोर से डिस्कस करके वो सब चीज़ें जो है अलाइन करके बाद में नेक्स्ट सीटिंग में उसे ट्रीट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों में आपको हम हेल्प करते हैं, बिकॉज आर मोटिव इज टू डेवलप हीलर्स एंड गिव इट टू द सोसाइटी टू अचीव द पेन फ्री लाइफ फॉर देम। तो ये मिशन हर घर हीलर है, और वो हर घर हीलर्स के थ्रू ही हम हर घर हीलिंग, जो हमारा मिशन है उसके, उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा मोटिव यही रहता है, जितना भी हमारे पास है वो सब आपको हम डिलीवर करें, एंड वो आप प्रॉपर वे तक सोसाइटी तक डिलीवर करो। और इसमें क्या है कि आपने अगर किसी ने, समझो 100 पेशेंट हमारे पास आए, तो चलो उसमें से बहुत सारे पेशेंट मेरे से ठीक नहीं हुए तो भी चलेगा, बट कोई पेशेंट खराब नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे मोटिव रहेगा, तो इसके लिए आपको एजुकेट
करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस पे कहीं पे बात नहीं होती है। वर्कशॉप आया तो बस आपको जो उनका काम है बता दिया, स्टेप्स बता दिए, ट्रेनर चला जाता है। फिर आप क्या कर रहे हो एक दूसरे के बॉडी पे, एक दूसरे को रिस्क में डाल रहे हो, तो वो भी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और कैसे तो भी 2-3 दिन निकल जाते हैं, आप आपके घर, वो उसके घर, और फिर कोई आपका और उसके बीच में ताल्लुकात नहीं रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके ग्रुप बनाए जाएंगे 8-8 लोगों के, और ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू परफॉर्म ऑन अ 7 पर्सन। और जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, हर एक ग्रुप के साथ एक मेंटोर जो है वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सो ये मेंटोर के सामने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो बोलते हैं, तो बाकायदा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे बाकी चीजें नहीं, जैसे सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक जो है हमारा शेड्यूल रहता है। तो इसमें डेडिकेटेडली आपको जो है पूरा समय जो है लर्निंग पे ही देना होगा, बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसमें जो भी थ्योरी होता है या फिर कंसेप्ट होता है, वो सब हम मोस्टली ऑनलाइन सेशंस में कवर कर लेते हैं। और जो पूरा पेमेंट अगर जितना जल्दी करते हैं, उन्हें हम प्रीवियस वर्कशॉप्स के रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग्स देख के अगर आप वहाँ पे आते हो, देन यू जस्ट, आपको कंसेप्ट क्लियर होता है पूरा, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे जो है वो फोकस रहता है, और आपके डाउट्स एंड क्वेरी भी वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो नीरज सर, चैट में कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप एड्रेस करना चाहेंगे? सो मेडिकोज और नॉन मेडिकोज में लोगों को ये बहुत सारा ये रहता है कि सर मैं तो नॉन मेडिको हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ क्या, मुझसे ये होगा क्या? बट ये चीज एक्चुअल सिंपल है कि डिफिकल्ट है? तो सो कही जाए तो डिफिकल्ट भी है या फिर सिंपल भी है, तो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है कि? ये हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है सर। यस। अगर हम लॉजिकली चीजें करेंगे तो ये बहुत सिंपल लगेगा, और इलॉजिकली करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, एग्जीक्यूशन में भी और रिजल्ट में भी। और अगर लॉजिक यूज करेंगे तो एग्जीक्यूशन में भी हमको सिंपल रहेगा, और उसका रिजल्ट भी हमको फ्रूटफुल रहेगा। और सबसे मेन जो चीज है कि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों वर्ड में ना सिर्फ जो 4 लेटर का वर्ड आता है ना, ओवर, उसका डिफरेंस है। और हमको कोई भी चीज ओवर नहीं करनी है, ना और कॉन्फिडेंट होना है, ना कोई ट्रीटमेंट ओवर करनी है। पेशेंट को जितना जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, उसकी ही ट्रीटमेंट करो। यस। ऐसा नहीं है कि उसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उसको नी का भी मैनिपुलेशन दे दो, उसका हिप का भी मैनिपुलेशन कर दो, एंकल का भी कर दो, रिस्ट का भी कर दो, एल्बो का भी कर दो, फिंगर्स का भी कर दो, कान का भी कर दो। जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उतना ही करना चाहिए। और इसीलिए हम जो है सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं सिखाते हैं, हम मोबिलाइजेशन भी सिखाते हैं। फिर ISTM, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन, कपिंग से। तो इससे पेशेंट को 60-70% जो है, हम पहले ही उसका जो तकलीफ है वो कम कर देते हैं। सो दोनों एक ट्रैक, जैसे हर चीज के लिए 2 ट्रैक होते हैं, वैसे ही है कि मैन्युपुलेशन और मोबिलाइजेशन, ये दोनों साथ में चलेंगे। यस सर, इसके साथ में हम विसरल मैनिपुलेशन भी ले रहे हैं, तो जी उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। सर, तो विसरल मैनिपुलेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बॉडी इज वन यूनिट, मतलब आपका बॉडी एक वन यूनिट है। मतलब अगर आपके मस्कुलोस्केलेटल में प्रॉब्लम है तो उसका कनेक्शन आपके विसरल से भी है। विसरल मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उससे भी है। अगर आपके विसरल में प्रॉब्लम है तो आपके मस्कुलोस्केलेटल में भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे स्पाइन का एनाटॉमी ठीक से अगर गौर से देखेंगे तो उसमें से जो नर्व्स निकलती है तो वो सारे तीन तीन निकलती है। तो एक कनेक्शन जो है वो सारे ऑर्गन्स को जाता है। इसीलिए जब हम स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है ऑर्गन्स को भी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं।
क्योंकि ऑर्गन्स की एनर्जी जो है वो कहीं पे रिस्ट्रिक्ट है। तो विसरल मैनिपुलेशन क्या है कि आप जेंटली हर, और जैसे हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट होती है वैसे हमारे हर ऑर्गन की एक डेजिग्नेटेड मूवमेंट होती है। तो जब ये ऑर्गन की जो डेजिग्नेटेड मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होती है तभी ये प्रॉब्लम होते हैं। अभी आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम जो होता है, पेशेंट की कंप्लेन होती है लो बैक पेन या सियाटिका, ये जो प्रॉब्लम होती है 80% उसका रीजन जो है वो मस्कुलोस्केलेटल नहीं, कहीं पे विसरल है। क्योंकि अगर हमारा पेट हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, ब्लोटेड रहेगा, तो हमको उसकी तकलीफ होगी बैक पेन की। अभी आपने लंबर बैक पेन के लिए लंबर रोल तो कर लिया, लेकिन वो पेन उसको फिर से होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने उसका रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जो उसके एब्डोमेन में है। क्योंकि गट हेल्थ अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं होती है, हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो जाती है, तो हमारे ऑर्गन्स, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सारा कोलैप्स हो जाता है सिस्टम। सो बॉडी वन यूनिट है। अगर आपको ट्रीट करना है तो रूट कॉज पे ट्रीट कीजिए, सिम्टम पे ट्रीट मत कीजिए। बैक पेन है तो उसको रूट कॉज आइडेंटिफाई कीजिए, नी पेन है तो रूट कॉज आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि नी पेन का प्रॉब्लम जो है वो उसके विसरल से कनेक्टेड होता है, उसके इलियोसिकल वॉल से कनेक्टेड होता है, उसकी किडनी से, किडनी डिसफंक्शन से होता है, उसका सिग्मोइड कोलन से होता है। क्योंकि हर, कहीं ना कहीं हर किसी ना किसी का किसी किधर ना किधर से कनेक्शन है। और ये कनेक्शन सब जो बनता है उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है फेशिया का। अभी फेशिया क्या है? तो फेशिया हमारे एक बॉडी का वन कनेक्टिव टिश्यू है विच इज होल्डिंग एवरी ऑर्गन, नर्व, लिगामेंट, टिश्यूज इन वन प्लेस। सो जब एक पार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके साथ चार पार्ट में प्रॉब्लम है। तो विसरल मैनिपुलेशन भी उसमें का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अभी आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तो ट्रीट कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट विसरल? वो तो वैसे ही है। शोल्डर पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, तो उसका लीवर से कनेक्शन है, उसका लीवर डिसफंक्शन हो रहा है, फैटी लीवर है, लीवर कंप्रेशन में है, तो भी उसको शोल्डर पेन होगा, फ्रोजन शोल्डर होगा। तो ये जो चीजें है ना हम लोग कवर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मोटिव यही है कि वी हैव टू ट्रीट द रूट कॉज। पेशेंट ने बार बार नहीं आना चाहिए। और रूट कॉज जो है वो विसरल से है या फिर मस्कुलोस्केलेटल है या फिर कहीं डिफॉर्मिटी है बॉडी में, तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब ये सब मॉडलिटीज और सब कंसेप्ट आपके पास रहते हैं, देन यू कैन ऑब्जर्व द एग्जैक्ट रूट कॉज। ओके, तो इसमें पोस्चर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो भी आपको किसी वर्कशॉप में बोन सेटिंग के नहीं सिखाया जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो पेशेंट ने कहने से पहले आपको डायग्नोसिस होना चाहिए कि ये किस प्रॉब्लम के लिए आया है। और जब आप पेशेंट के पहले वो को प्रॉब्लम उसको गिना देते हैं ना, देन साइकोलॉजिकली पेशेंट वही पे जो है उसका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये दूसरा जो क्या इमेज, क्वेश्चन आया है? अब अभी ये विसरल मैनिपुलेशन का जो इमेज है, फ्लायर है, उस पे जो ये ऊपर वाला इमेज है उसमें जो हम देखेंगे तो ये लीवर लिफ्टिंग कर रहे हैं। यस। तो ये बहुत, इसके भी अमेजिंग रिजल्ट्स है। तो जो मेडिकोज है उनको मालूम ही होगा ये, बट इसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि नॉन मेडिकोज के लिए सेफ टेक्निक्स जो है हमने डेवलप किए हैं। तो बस उतना ही करना है जिससे उनको रिजल्ट आएगा। और बाकी जो मेडिकोज है वो एडवांस सीखना चाहते हैं, जो भी है, तो आपके पास एक्सपर्ट तो है ही अवेलेबल। सो ऑन वन टू वन बेसिस यू कैन गो अहेड। ठीक है। और दूसरा है कि एक्सरे भी मुझे नहीं देखते आता है तो देखना ही नहीं है ना, हमें रेडियोलॉजिस्ट थोड़ी ना बनना है। ओके, लेकिन कोई रिपोर्ट लेके आता है तो उसमें कुछ वर्ड्स रहते हैं। तो कौन से वर्ड्स अगर आते हैं तो आपको वो पेशेंट नहीं करना है, या फिर कुछ वहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आपको वो एमआरआई देखने के बाद पता चलेंगे। तो यू डोंट हैव टू सजेस्ट एमआरआई। आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स है वो वहाँ पे आपको अगर नजर आते हैं, आपको वो पेशेंट नहीं लेना है। ओके। सो अगर है आपके पास कोई रिपोर्ट लेके आता है तो वो केस में क्या देखना है?
क्या है तो क्या करना है और क्या है तो नहीं करना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसका प्रॉपर लेक्चर है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा 2 घंटे का। उसमें वो समझ में आएगा। जब आप सेशन के लिए आएंगे तभी भी हम बहुत सारे रिपोर्ट्स और लाइव पेशेंट लेंगे, उसमें भी आपको ये चीजें समझ में आएंगे। ओके। और हाय सर। एक्सरे एक्सरे रीडिंग और एमआरआई रीडिंग ये टोटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। और उसका स्पेशल वर्कशॉप्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक दो दिन में ये नहीं होता है। यहाँ पे हमारा फोकस ये रहेगा कि पेशेंट जब आपके पास आता है एक्सरे रिपोर्ट लेके या एमआरआई रिपोर्ट लेके, तो उस पे जो मेंशन किया हुआ है उसको पढ़ के वो आपके लिए रेड फ्लैग है या आप पेशेंट को कर सकते हो, ये आपको बता सकते हैं। यस। ठीक है। तो क्योंकि लोग तो आपके पास रिपोर्ट लेके आएंगे, फिर आपको क्या करना है, बाकी लोगों के जैसे रिपोर्ट हाथ में लेके एक्टिंग नहीं करना है कि जैसे मुझे बहुत समझ में आता है। तो भी रियलिस्टिक वे में वहां पे होना चाहिए। तो ये रियलिटी में बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है सब चीजें। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन आया है। हाय सर, श्रीनाथ फ्रॉम पुणे, 3 दिन के वर्कशॉप में कोई स्टूडेंट परफेक्ट थेरेपिस्ट बनेगा? सर परफेक्ट तो कोई नहीं है, डॉक्टर भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। ओके, इतने साल से। तो कंसेप्ट क्या है, मैनुअल थेरेपी है। तो जब आप आपके हाथ से वो फील नहीं करेंगे, पालपेट नहीं करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होगा, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। और इट्स अ कंसेप्ट। तो कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया, देन यू कैन डेवलप योर ओन सेट ऑफ मोडालिटीज और प्रोटोकॉल्स फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। तो ये कर रहे हैं अभी हम तो, 3 साल से कर रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंसिंग। लोग ऑलरेडी इधर उधर जाके बहुत सारा पैसा डाला है लोगों ने, 2-2 लाख रुपए के कोर्सेज किए, और फिर हमारे आके यहाँ आके जिसमें मेडिकोज भी है, ओके, बीपीटी एमपीटी भी हुआ है, ऐसे भी फैकल्टी आए हैं। तब उन्हें पता चला है कि सर ये सबसे जरूरी है कि जो आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हो, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरा ही आपको आना जरूरी है। किसी को नी में अगर बहुत सा कंसेप्ट उसके दिमाग में बैठ रहा है, देन यू कैन बी ए नी स्पेशलिस्ट, कि भाई नी पेन जिसको है बस मैं उसी को टारगेट करता हूँ, फिर भी रोज के 50 पेशेंट आएंगे आपके। तो ऐसे भी काम कर रहे हैं। देन यू हैव टू बी अ हीलर, नॉट अ डॉक्टर, ये समझ लो। ठीक है। सो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। डे 1 जो है, डे 1 20 and 21 September, we are going to conduct the bone setting and body alignment session. On the 21st September itself, from 2 p.m. onwards to the night, we are going to conduct the myofascial decompression and ISTM. And then on third day, from morning 9 a.m. to 6 p.m., 6 to 7 p.m., we are going to conduct the session for the visceral manipulation. Okay, so this will be our schedule. Friday, 20th September. The day we called is body and spine alignment and posture analysis. Second day, we are going to do the alignment with the muscle day, muscle toning, muscle release. We are going to learn. And on third day, the root cause healing from the visceral, we are going to learn. So this will be the sample of certification. Whatever we are going to cover. This is a visceral manipulation certification. So this is a diploma in traditional bone setting certification. Your small exam will also been conducted, and you can see there are a few 5 practicals. So that practical session we are going to cover in a 3 days hands-on workshop, and these are some questionnaires. So that also we are going to cover within that. So it will be a journey of 2 months, not a 3 day, but it will start from the day 1 you have registered for the वेबिनार। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, आपको इमीडिएट बेसिस पे जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, और अपकमिंग ऑनलाइन सेशंस में आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हो। वर्कशॉप में आप आते हो, वर्कशॉप के बाद में भी आप कनेक्ट रहते हो, और आफ्टर 2 मंथ्स भी लाइफ टाइम यू कैन बी इन टच विथ अस। ग्रुप में हो आप, रेगुलर लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो। सो दीज आर आर few previous batches. This is a visceral manipulation batch for which we have invited an international faculty. And this is our bone setting and the same.
my official release in all this workshop, another workshop. This is another workshop. So you can see most of the ladies are also participating in workshops, and they are getting good results also, and they are doing their OPD work on their OPD very enthusiastically and efficiently. This is another batch photo you can see. So we have conducted so many batches. This batch we have conducted in Indore. So through all over Maharashtra, in Pune, in Sangli, this batch was in Sangli. And here you can see we used to conduct a regular online support sessions also. These are the students are connected to for the session. So इसमें आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे, हम तो एफर्ट ले रहे हैं, इट्स योर कॉल आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, उतना जल्दी जो है आप समझ पाएंगे. तो एक वीडियो है. ये पैरामेडिकल कॉलेज है जिनके साथ हम ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं. एंड ट्रेडिशनल बोन सेटिंग का जो डिप्लोमा है, ये भी कॉलेज के इनिशिएटिव से ही हमने जो है लाया. पोस्चर एनालिसिस गोइंग ऑन. This is feet analysis. नहीं सर, अभी वर्कशॉप जो है नासिक में है, नॉट इन पुणे. मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ. नीरज सर, यस सर. आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं वीडियो में क्या चल रहा है वो. हमारा डाइनिंग टाइम है, रात को हम सब मिलके साथ में खाना खाते हैं. नाइट फायर कैंप था ये, जो दिसंबर का बैच था, तो उसमें 31st के दिन रात को हमने कैंप फायर ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे सिलेक्शन था एक कैंडिडेट का. डेट 3 है. सेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, लाइव सेशन. ये किंग्सियो टिपिंग का लेक्चर डॉक्टर घनश्याम बारगड़े सर. और अभी ये मैम को नी पेन का प्रॉब्लम था. ये हम ये मायोफेशियल कंप्रेशन का डेमो दे रहे प्रैक्टिकल. ये एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का डेमो. ये वर्कशॉप के बाद जो सर्टिफिकेट सेरेमनी जिसका सबको इंतजार होता है.
वर्कशॉप करने के बाद ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप हो गया तो हमारा खत्म हो गया, एक फैमिली बन जाती है। डिवाइन टच की फैमिली से आप सब जुड़ जाते हो। ये सुमित सर है, ये पैरा कमांडो है इंडियन मिलिट्री में। इनका यूट्यूब पे चैनल भी है। ये सारे ये माया फेशियल डिकम्प्रेशन और आईएसटीएम का प्रैक्टिकल डेमो, यहाँ पे ट्रीटमेंट वाइज प्रोटोकॉल बताए जाते हैं। यूट्यूब पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जिनका स्टार्टिंग ही डिवाइन टच से हुआ है, तो उनसे भी आप मिलेंगे, उन्हें हम एज अ मेंटोर भी इनवाइट करते हैं। सो सक्सेस स्टोरीज जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हो बहुत सारे। दीज आर फ्यू सर्टिफिकेशंस आई हैव डिस्प्लेड हियर। और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है, देखो। तो वीजा के लिए अप्लाई किया था यूएई में, तो वो भी अप्रूव हो गया है। तो वहाँ पे इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही इज प्रैक्टिसिंग। और अभी और एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उनका भी अप्लाई अप्रूव हो गया ट्रेडिशनल बोन सेटिंग के सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो दीज आर फ्यू कोर्सेस वी आर अवेलिंग। तो इसमें डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग तो है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड न्यूरिक साइंस, डिप्लोमा इन एडवांस पंचगव्य थेरेपी, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मसाज एंड पंचकर्मा थेरेपी। तो पैरामेडिकल कॉलेज में आपको ये भी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहेंगे। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डीपीटी, डीएनवाईएस, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, फॉर बीएनवाईएस आल्सो कॉलेज विल गाइड यू एंड वोकेशनल कोर्सेज आल्सो अवेलेबल। तो ये इन कोलैबोरेशन विथ NIPS वी आर डूइंग दिस। तो एडिशनल कोर्स के बारे में बता दिया। और जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है उसमें DNYS है, DPTA है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मसाज एंड पंचकर्मा थेरेपी, एडवांस डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी, स्पाइनल मैनिपुलेशन बाय नेचुरोपैथी, डिप्लोमा इन कपिंग एंड ISTM एंड मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो वैसे भी आप जो है उसमें ले सकते हैं। वी आर द ओनली वन कि जिन्हें जी मीडिया पे जो है फीचर्ड किया गया बिकॉज ऑफ आर मिशन हर घर हीलिंग एंड हर घर हीलर। और जो सोसाइटी में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आर हेल्थ कैंप, और कॉरपोरेट के लिए भी हम कैंप्स लेते हैं बड़े पैमाने पे। तो इससे जो है रिकग्निशन मिलता है। तो मोर देन 2 स्टेट्स लेवल अवार्ड्स भी हमें मिले हमारे सोशल इनिशिएटिव के लिए। और ये क्यों पॉसिबल होता है कि कब किसी इंडस्ट्री से सपोज दैट 1000 एम्प्लॉय का काम हमें मिलता है, तो यही जो आप में से कुछ हीलर्स है जो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, हम उन्हें ही इनवाइट करते हैं। या फिर आपके एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज रहेंगे तो हम उन्हें भी इनिशिएटिव लेके वहाँ पे आके आपके लिए जो है वहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये भी काम हम करते हैं। अभी फिलहाल हम महिंद्रा और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए रिसेंटली जो है हमारे कैंप्स चल रहे हैं नासिक में। और वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर IT इन पुणे। सो इसमें टीम लगता है। सो दैट टीम ऑफ 100 हीलर्स आई नीड वेरी अर्जेंटली। और ये कंसेप्ट को हमें जो है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तक लेके जाना है। सो आप तीनों वर्कशॉप के लिए अगर ज्वाइन करते हो, तो जैसे दोनों वर्कशॉप जो है, जैसे बोन सेटिंग है, मायोफेशियल रिलीज है और विसरल मैनिपुलेशन है, तीनों के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैंने बोनस भी रखा है ये ट्रेनिंग के लिए। वो क्या है कि आपको एक फंक्शनल कपिंग का जो है फुल बॉडी प्रोटोकॉल्स का जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, उसका एक्सेस जो है, कोर्स वर्थ ₹12,500, उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। ओके, तो ये बोनस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी हम फी स्ट्रक्चर पे जाते हैं, विल कवर इट इन शॉर्ट, फिर हम डिस्कशन पे आएंगे। सो फ्री स्ट्रक्चर फॉर 3 days हैंड्स ऑन स्किल वर्कशॉप विल बी फ्राइडे 20 सितंबर और संडे 22 सितंबर। तो आने वाले वर्कशॉप्स के लिए भी ऐसे ही रहेगा। 3 दिन का ये हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। 3 दिन में हम कवर कैसे कर रहे हैं, डे 1 जो है 10 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हमारा शेड्यूल रहेगा। और डे 2 सुबह 10 बजे से लेके रात को दोपहर को 2 बजे तक। तो ये पीरियड में जो है हम क्या कवर करेंगे, पोस्चर एनालिसिस एंड पोस्चर करेक्शन थ्रू द ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। तो बोन सेटिंग एंड ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन जो है फॉर द स्पाइन एंड जॉइंट्स,
उसका असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में जो है ये सेशन रहेगा हैंड्स ऑन। एंड इसमें आपको एक बोनस मिल रहा है कैनेसियो टेपिंग प्रोटोकॉल, जो हम 8,500 में ऑलरेडी वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे, लेकिन आपको वो देने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें फ्री मिल रहा है। और प्रीवियसली वी वर चार्जिंग 21,500 फॉर दिस वर्कशॉप। ओके, तो और उसके बाद 7,500 इसमें एक महीने बाद देना रहता था फॉर द डिप्लोमा। तो वो 7,500 वैसे ही है, आपका एडमिशन हो जाता है, बट कॉलेज को जो है हमें एक महीने बाद वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होता है। तो इसीलिए हमने भी स्टूडेंट्स को वो इजाद थोड़ा समय मिल जाता है स्टूडेंट्स को भी मैनेज करने के लिए। तो 21,500 को अभी हमने रिड्यूस किया है सीधा 16,500। तो ये रिड्यूस क्यों कर पाए हैं, फैसिलिटी वही है, इवन दो ज़्यादा बड़ी है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, बट जो इवेंट्स जो है हम पहले कॉलेज के प्रीमाइसेस में ले रहे थे, या फिर कोई होटल बुक करके ले रहे थे, या आउटस्कर्ट जाके ले रहे थे, तो उसमें बहुत सा एक्सपेंस बढ़ रहा था और हमारा ओपीडी भी कॉम्प्रोमाइज होता था। तो ये सब चीज़ें है। अभी जो है हम सेशंस जो है हमारे ही सेंटर पे हमने कंडक्ट करना जो है स्टार्ट किया है, तो जिससे हमारा एक्सपेंसेस बहुत कम हो गया। और अकोमोडेशन जो है, जो पहले हम हमारे एंड से देते थे, तो उसमें भी बहुत सारा एनर्जी हमारा जाता है, और फिर पेशेंट भी, स्टूडेंट भी कोई कंफर्टेबल होता है या फिर कोई अकोमोडेशन नहीं लेता है, लोकलाइड होता है, तो वो केस में उनका फीस भी कम ज़्यादा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये केस में अकोमोडेशन आपके ऊपर रखा है। सो वी विल प्रोवाइड यू द रिकमेंडेड अकोमोडेशन, विल गाइड यू फॉर दैट। तो इसमें जो है ये फीस जो है हमने रिड्यूस कर दिया है। फिर नेक्स्ट डे 2 जो रहेगा, दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, मसल डे हम इसे बोलेंगे। तो इसमें हम ISTM, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मायोफेशियल डिकम्प्रेशन, ये मसल के प्रोटोकॉल जो है, मसल रिलीज एंड मसल टोनिंग, ये कवर करेंगे। तो इसका भी जो वर्कशॉप का फीस रहता था हमारा, वो 12,500 प्रीवियसली था। सो अभी जो है आपको 8,500 में ये वर्कशॉप करने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 4,000 रुपीज का डिस्काउंट जो है हमने पास ऑन किया है। तो टोटल डिस्काउंट आपको कितना हो गया, ये इंडिविजुअली। ओके, इफ समवन वांट टू डू द माय फेशियल रिलीज, ये हैव टू पे द 8,500। अगर आप लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक तो पहला वर्कशॉप होना जरूरी है, अदरवाइज आप फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हो, देन यू कैन गो डायरेक्टली फॉर दिस कोर्स। ओके, सो इसमें भी हमने 4,000 डिस्काउंट किया है। तो टोटल फीस फॉर बोथ डे कितना हो जाता है, 16,500 प्लस 8,500, 25,000 हो जाता है। ओके, सो ऑलरेडी आपको इसमें 9,000 का डिस्काउंट तो मिला ही है। मतलब ट्रेडिशनली जो हमारा प्रीवियसली जो फीस था, वो था 21,500 और कितना, 21,500 और 12,500। तो वो सीधा रिड्यूस करके उसमें 9,000 लेस करके वो सीधा आ रहा है आपको 25,000 रुपया। ओके, तो इसमें भी आप अगर दोनों बैच के लिए आप एनरोल करते हो, और दोनों बैच अभी हमने कंपलसरी कर दिया है फॉर एनी फ्रेशर, सिर्फ हमारे ओल्ड स्टूडेंट जो है जिनका MFR या ISTM जब नहीं था तब उन्होंने सेशन किया है, तो वो अटेंड कर सकते हैं। तो इट डिस्काउंटेड टू द 22,500 ओनली। तो इसमें भी हमने क्या किया, 9,000 डिस्काउंट तो पास ऑन था, किया ही था, बट इसमें और आपको 2,500 का डिस्काउंट हमने दे दिया है। तो 9, 10, 11, 11,500 का डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आपके बैच को जो है ये बढ़िया से, और ये पहले 3 दिन का पूरा सेशन रहता था, अभी हमने 2 दिन में कैसे कवर किया है। जब कोई वेन्यू हम बुक करते हैं तो उसका टाइमिंग जनरली सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक होता है, और उसमें भी फिर ब्रेक वगैरह में टाइम जाता है, और खर्चा भी बढ़ जाता है होटल में। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारा ही प्लेस है, तो यू कैन वी विल कंक्लूड टिल द वी कैन कंटिन्यू टिल द 9 PM, और उसके बाद में भी आपको लगता है यू कैन प्रैक्टिस। ओके, तो इसमें वही जो थर्ड डे के आवर्स है वो हम 2 डेज में हमने कोप अप कर लिए है। सुबह 9 को स्टार्ट कर रहे हैं और रात को 9 बजे तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तरीके से। सो और डे 3 में अगर हम आएंगे, सो डे 3 फ्रॉम 10 AM टू 8 PM और 7 PM, 9 AM को स्टार्ट करेंगे तो 7 PM तक वी विल कंक्लूड। सो संडे 22 September, to heal the root cause, we will work on visceral body organs, their mobilization and manipulation. सो इसमें जो है इसका फीस जनरली जो फीस है वो 16,500 होता है
नाउ वी हैव मेड इट टू द 12,500, और इसके लिए आपको जो है एडवांस 4,000 रुपीज पे करना रहता है। इफ समवन वांट टू अटेंड दिस ओनली, सो यू हैव टू पे द एडवांस 4,000। तो पहले 2 दिन का वर्कशॉप करना है तो 5,000 रुपीज एडवांस पे करना है, और थर्ड डे का वर्कशॉप विशल का अटेंड करना है तो 4,000। तो फिर आपको अगर तीनों दिन का अगर अटेंड करना है तो आपका एडवांस कितना हो जाएगा, 9,000, और फीस कितना हो जाएगा, यू हैव टू पे 31,500। मतलब वो फीस अपना जो था वो 25,000 का ऑलरेडी हमने 22,500 किया था, 22,500 प्लस 12,500। ओके, तो ये कितना हो जाता है, 22 + 12 34, टोटल 35,000 हो जाता है, करेक्ट। तो 35,000 भी नहीं पे करना है, उसमें भी आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, 31,500 में ही आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एडिशनली आपको जो है 4,000 रुपये का, 35,000, 3,500 रुपये का एड ऑन एडिशनल डिस्काउंट पास हो रहा है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो तीनों वर्कशॉप पे 6,000 नहीं, मोर देन दैट, कि यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे तो 4,000 रुपीज हमने लेस किया है, तो 9,000 का वो डिस्काउंट था, फिर 11,500 का वो हो गया, फिर 4,000 का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे करके जितना रिड्यूस कर सकते हैं हमने ये बैच में जो है रिड्यूस करने का प्रयास जो है किया है, सब टीम से बात करके हमने ये डिसीजन लिया है, बिकॉज वी हैव टू मेक इट मोर फ्रिक्वेंट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एक ही टाइम पे आके सब चीज़ें सीख के जाएंगे, क्योंकि बार बार आना पॉसिबल नहीं होता है कि एडवांस के लिए आऊँगा सर, तो ये नहीं होता है। फिर क्या है, एक ही बार कंसेप्ट तो भी लेके जाएंगे ना, तो फिर वो तरीके से सोचना चालू करेंगे, और सब जब सोचना चालू करेंगे तभी तो उसमें धीरे धीरे क्वेरीज आएंगे, और क्वेरीज सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो फिर जाके वो रिजल्ट जो है अल्टीमेट दिखना चालू हो जाएगा। सो टोटल डिस्काउंट पासिंग, टोटल फीस 37,500 फॉर ऑल 3 डेज के ऊपर 6,000 फ्लैट डिस्काउंट, तो डिस्काउंटेड फीस में भी पास हो रहा है अगर तीनों के लिए आप ऑप्ट करते हो। सो यू कैन स्टे फॉर 1 मोर डे, दैट इज डे 4 फॉर एडिशनल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो जिन्हें पॉसिबल है वो और एक दिन के लिए रुक सकते हैं हमारे सेंटर पे, एडिशनल फुल डे वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइव पेशेंट भी चलेंगे, वो भी देखते हैं ड्यूरिंग द वर्कशॉप आल्सो वी आर इनवाइटिंग, वी विल कीप ऑन इनवाइटिंग लाइव पेशेंट्स, वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो है फीस स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आपको पेमेंट कैसे करना है, नाउ यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2,000 ओनली। अभी आपको 2,000 रुपये का ही पेमेंट करना है। फिर आपको ये नंबर पे पेमेंट करना है, 9930992271, किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करेंगे तो डिवाइन टच लिख के आएगा, या फिर आशीष सूर्यवंशी, डिवाइन टच बाय आशीष सूर्यवंशी ऐसा लिख के आएगा। तो वहाँ पे पेमेंट करके उसी नंबर पे आपको ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देना है, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका एक्सपर्ट के साथ एक कॉल अलाइन किया जाएगा, और वो कॉल में वी विल डिस्कस विद द एक्सपर्ट, देन जो भी आपके डाउट्स क्वेरी है, या फिर आप क्या करते हो पर्सनल लेवल पे, थोड़ा एक डिस्कशन आपको समझा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स लेना है कि नहीं लेना है ये भी हम डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस फीस दे दिया तो आप आ ही सकते हो। तो उसमें भी इनकेस कुछ ऐसे लगता है कि यू आर नॉट कंपेटेबल या सुटेबल, देन वो केस में वो रिवर्स भी हो जाता है। तो पहले आपका एक एक्सपर्ट के साथ प्रॉपर 1-to-1 कॉल होगा, आपका मोटिव भी समझ लिया जाएगा, यहाँ पे आने का प्रीवियस आपका हिस्ट्री क्या है वो भी समझ लिया जाएगा। देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि जो बैलेंस अमाउंट आपका है, जैसे आप 2,000 भी पे करते हो, देन यू विल गेट एक्सेस फॉर द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कि काइनेटिक चेन क्या होता है बॉडी का, क्या एग्जैक्टली हमें अचीव करना है थ्रू द बोन सेटिंग और ये सब प्रोटोकॉल से। और उसके बाद जो पेंडिंग अमाउंट है, जैसे यू इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर फर्स्ट 2 डेज ओनली, तो 3,000 और पे करके आप वो 2 दिन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। आपको तीनों दिन के लिए ऑप्ट करना है, देन यू हैव टू पे द बैलेंस 7,000, आप तीनों दिन के लिए रजिस्टर कर लो। और फिर बैलेंस फीस जो है, फिर उसके बाद आपको जो प्रीवियस हमारे ऑनलाइन सेशंस हुए हैं अभी अपकमिंग बैचेस के लिए, वो दोनों तीनों सेशन का एक्सेस हम दे देंगे वंस यू पेड द ऑल रजिस्ट्रेशन फी। और बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है वो आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी फर्स्ट डे पे कर सकते हो, या फिर जितना जल्दी आप फुल अमाउंट पे करेंगे यू विल गेट एक्सेस ऑफ प्रीवियस वर्कशॉप वीडियोस एंड फंक्शनल कपिंग का जो कोर्स है उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको अगर प्रीवियस वर्कशॉप में के ग्रुप में, वीडियोस के ग्रुप में हम चैनल में कब ऐड करते हैं, जब आफ्टर वर्कशॉप ही ऐड करते हैं, या फिर पूरा पेमेंट आ जाता है तो ही ऐड करते हैं, बिकॉज वहां से निकाल नहीं सकते, एक बार निकाल दिया तो अगेन आप कभी भी वो उसमें ऐड नहीं हो सकते खुद से। तो उसमें ऐड करना है तो पूरा पेमेंट आना जरूरी है। तो आपका अगर कॉल है
आपको कॉन्फिडेंस आता है, देन यू कैन गो फर्दर एक्सपर्ट से बात करने के बाद। और जैसे ही आप पूरा पेमेंट आपका आ जाएगा, तो आपको प्रीवियस वर्कशॉप के वीडियोस मिलेंगे, वो उस पर आप टाइम स्पेंड करना है आपको। जो भी डाउट्स क्वेरी आएंगे नोट करो, बट एटलीस्ट आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप जाके क्या करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, जिससे और बढ़िया जो है आप फोकस हैंड्स ऑन पे कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, पेमेंट प्रोसेस का। और जो भी पेमेंट करेंगे उन्हें इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये नंबर आपको आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर डिवाइन टच, ऐसे करके भी आप सेव कर सकते हो। तो ये व्हाट्सएप का एक्सेस जो है मेरे स्टाफ के पास भी होता है। दिस इज माय ऑफिशियल नंबर। तो आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको इमीडिएट बेसिस पे रिप्लाई भी आ जाएगा, और एक्सेस भी आपको एनाटॉमी के लेक्चर का मिलेगा, और एक्सपर्ट का नंबर भी मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया मेरे साइड से। अभी कुछ डाउट्स एंड क्वेरी रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। सर पुणे में नहीं होगा, पुणे में फिलहाल नहीं है। अभी हमने नासिक में ही सेंट्रलाइज इसे कर दिया है। अगेन वापस हम नासिक से बाहर जाएंगे तो फिर वापस खर्चा बढ़ जाएगा, सब चीज़ें हैं। यही फीस जो है उसमें अगेन जो है पैसा ऐड हो जाएगा। और वैसे भी पुणे में रहे, नासिक में रहे, कहीं पे भी रहे, आपको 3 दिन तो कुछ करने को वैसे भी नहीं मिलने वाला है। आपको लगता है कि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में वर्कशॉप है तो मेरा पेशेंट भी हो जाएंगे और फिर मेरा स्टडी भी हो जाएगा। ऐसे में नहीं होता है, बिकॉज बहुत वास्ट जो है सिलेबस हमें कवर करना होता है। तो कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वो कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर आना ही पड़ेगा। डेडिकेटेडली आपको लर्निंग पे ही फोकस करना है। इवन दो 9 बजे के बाद आपको होमवर्क भी है, तो आप जैसे ही आप रूम में जाते हो, आपके रूममेट के साथ या जो भी आपके कलीग है उनके साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, ये चीजें रिवाइज करनी है, नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। ओके। स्टूडेंट के स्टे के लिए हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे 700 रुपीज पर डे से लेके 3000 रुपीज पर डे तक सभी ऑप्शन हमारे नियर बाय 2 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे सेंटर के अवेलेबल है। तो जैसे ही आप ग्रुप में आ जाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पे हम ग्रुप बना के उनको कंबाइनली अकोमोडेशन भी देते हैं। या फर्स्ट डे आप अगर आ जाते हो तो उसके बाद में भी आप जो है डिसाइड कर सकते हो वेयर यू हैव टू स्टे। ओके, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। और कुछ डाउट करिए रहेगा तो आप पूछ सकते हो। सिंस प्रीवियस 4 बैचेस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, बट अकोमोडेशन बढ़िया है। हमारे ट्रेनर्स भी वहीं पे रहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, तो फिर मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अफोर्डेबल है। बाकी निखिल तारी सर ने ज्वाइन किया है आज। निखिल सर, वी हैव कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स एंड आई अप्रिशिएट योर फिजिक्स सर, वेरी इंस्पायरिंग। होगी सर, कॉल पे बात होगी। यू हैव टू पे 2000 रुपीज फॉर दैट। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर। और आप वर्कशॉप को आते हो या नहीं भी आप आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए वो कंसिडर किया जाएगा, बट आपको एक इनिशिएटिव लेना है आपके एंड से। नो सर, अकोमोडेशन इज नॉट इंक्लूडेड। तो अकोमोडेशन इंक्लूड है तो वापस वही फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे हमने पूना में लिया था। तो सिर्फ विसरल मैनिपुलेशन का 2 दिन का कोर्स लेने के लिए हमें 27,500 जो है फीस रखना पड़ा था 2 दिन के लिए, जिसमें हमने अकोमोडेशन और ट्रेनिंग दिया था। और उसमें भी क्या हुआ था कि होटल होने की वजह से वहाँ पे टाइम भी हमें लिमिट था कि हमें 6-7 बजे हॉल खाली करना पड़ता था। नियर बाय ऑप्शन बहुत सारे हैं सर, स्टेशन के पास में ही हमारा सेंटर जो है अवेलेबल है। सो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सब सोच समझ के ही हमने किया है, तो आपको एक अच्छा अकोमोडेशन भी मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके ट्रेनर्स जो है ना, वो भी उसी अकोमोडेशन में रहेंगे, तो अकोमोडेशन फूड का व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा।
आप कब आ रहे हैं जो भी है, हमारे कोऑर्डिनेटर जो रहेंगे उनसे आपको कोऑर्डिनेट कर लेना है। दे विल गाइड यू फॉर द रूम एंड दे विल बुक रूम ऑल्सो फॉर यू। और इनकेस कोई बहुत लेट नाइट आता है, आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो नासिक रेलवे स्टेशन से हमारा वेन्यू जो है वो 5 मिनट्स वॉकेबल है। आप रेलवे स्टेशन पे भी जो है आपको डॉर्मेट्री है, एसी डॉर्मेट्री अवेलेबल है, एसी रूम्स अवेलेबल है, बहुत बढ़िया नासिक में किया है। तो अभी कुंभ का मेला आ रहा है, इसीलिए ये सब डेवलपमेंट चल रही है। तो उसमें भी आपको वेरी अफोर्डेबल रेट्स में बहुत अच्छा अकोमोडेशन न्यू बिल्डिंग में मिल जाएगा। या फिर हमारे सेंटर के पास में ही एक मुक्तिधाम मंदिर ट्रस्ट करके है, बहुत बड़ा राम जी का मंदिर है। तो वो ट्रस्ट के भी लगभग वहाँ पे 200-250 रूम्स है। तो वहाँ पे भी बहुत दूर दूर से जो टूरिस्ट आते हैं उनका स्टे का फैसिलिटी है। फूड भी बहुत अच्छा है, तो वो भी अफोर्डेबल है। नॉन एसी रूम वहाँ पे 700 रुपीज है फॉर 2 और 3 पीपल एट विथ अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन है। तो ये सब ऑप्शन हम ग्रुप पे डाल देंगे, उसमें से आप चॉइस चूज करके यू कैन बुक फॉर योर ओन, और या फिर ग्रुप में ही आप डिस्कस करके एक ही एरिया से कोई आ रहा है तो आप वैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। हम लोग इतना सोचते हैं सर आपके अकोमोडेशन के बारे में, बाकी हम जहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे तो ये डिस्कशन ही नहीं होता है, हमें ही हमारे एंड से सब देखना पड़ता है और ये सब चीजें होती है। तो apart from that, any query you have, you can ask. Otherwise, go for the registration. Already, Nikhil sir, you have missed 2 lectures of ours, live lectures. तो उसका भी रिकॉर्डिंग आपको देखना है और वो सब रेडी होके आपको आना है। ओके। राव साहब सर ने ऑलरेडी फुल पेमेंट कर दिया है। थैंक यू सर। सादिक मुल्लाल, साईनाथ हरणे, मोहम्मद रहीम बेग। आप अनम्यूट कीजिए सर, इंटरेक्ट कीजिए। वी आर अवेलेबल। या फिर कुछ क्वेरीज है तो चैट में आप डाल सकते हो। सो प्रीफर टू डू द वर्कशॉप फॉर ऑल 3 days। ओके। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आसाम, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ से भी आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स वहाँ पे आए हुए। तो ये सब थ्रू रिकमेंडेशन ही आते हैं। ओके। सो कीप ऑन पोस्टिंग योर डाउट्स, नीरज सर विल अटेंड योर क्वेरीज। थैंक यू। वी आर